Beautiful Maharashtra in monsoon, and yes, we have the new Kia Seltos, which is also a very beautiful mid-size SUV. This car has launched in India at a starting price tag of just rupees 10.89 lakhs. Pricing अभी तक आ चुकी हैं and आपने शायद पढ़ ली होंगी. In this video, we are driving the Tech Line. Mind you, this car comes in 3 different trims: Tech Line, X Line, and GT Line as well. This is the Tech Line variant with an IMT gearbox. बहुत सारे बदलाव हुए हैं इस गाड़ी में, फ्रॉम डिज़ाइन टू फीचर्स एंड स्पेशली इंजन के साथ, बिकॉज एक नया इंजन आ गया है. सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एक्चुअली में ये गाड़ी कितनी इंप्रूव हुई है एंड शुड यू बाय इट. नमस्कार, माय नेम इज तेजिन, यू आर वाचिंग 91 व्हील्स. Now the Kia calls it the badass. 2019 में Seltos इंडिया में आई थी and it has been a remarkable product in terms of sales for Kia. अब this is the first facelift of the Seltos in India. Although बहुत major changes नहीं हुए हैं, but yes, there are some noticeable changes. Speaking of the design first, at the front fascia you will get new LED headlights and also the DRLs, they have been improved and redesigned. थोड़ा सा Kia के logo से inspired हैं ये. Also, you get a new front grille and the bumper is also revised. So are the fog lamps. The overall outlook from the front of the Seltos has improved definitely. थोड़ा सा premium हो गई है और भी, but बहुत major changes नहीं हैं. The major change is in its dimension because it has grown 50 millimeters. तो length अब गाड़ी की थोड़ी सी बढ़ गई है. At the side profile शायद आपको length एकदम से देखने में इतनी feel ना हो. That feels inside the cabin. On the side profile, the main changes in design are obviously the new 17-inch diamond cut alloys. Mind you, this is the HTX Plus variant which we are driving today and this belongs to the Tech Line. अगर आप GT Line या X Line लेते हैं उसमें आपको different body cosmetics मिलते हैं. For example, जो bumpers हैं दोनों अलग मिलेंगे. Also आपको जो front grille है वो different मिलेगी and GT Line पे आपको bigger alloys जो कि 18 इंच हैं segment first अभी तक वो मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रूफ रेल्स अब थोड़ी सी रीडिज़ाइन मिलेंगी विच आई थिंक इतना नोटिसेबल नहीं है. द मेन नोटिसेबल थिंग अबाउट द डिज़ाइन इज इट्स रियर. अब आपको एक नया LED टेल लाइट्स का सेट मिलता है एंड ऑल्सो एक कनेक्टेड ब्रेक लाइट बार बूटलेट के ऊपर मिलता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन ऑन द Hyundai कार्स जो अभी रिसेंट में अपडेट हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ना थोड़ा सा वैसा इंस्पायर्ड है, बट येस इट डेफिनेटली एनहांसेस द रियर प्रोफाइल ऑफ द न्यू Seltos. Also the rear bumper has been redesigned and also scuff plates are new and reverse light आपको नीचे की तरफ मिलते हैं. There is also a spoiler that makes the new Seltos look more smart and aggressive and this has been painted in black. So small changes on the design front, but there are some major improvements inside the cabin. So let's get inside. So once you get inside the new Seltos, एक complete new design आपको welcome करता है. Mind you, because this is the STX Plus variant, आपको इसमें मिलेंगी tan brown leather seats and tan brown leather upholstery on the door pads as well as on the dashboard. Speaking of what's new, dashboard completely नया डिज़ाइन किया गया है. AC के वेंट्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेस कर दिया गया है बिकॉज एक पैनारोमिक डिस्प्ले ड्राइवर के लिए एंड फ्रंट पैसेंजर के लिए आ गई है. What it does is, इसके अंदर आपको 10.25 इंच की 2 सेपरेट स्क्रीन्स मिलती हैं. One shows you the instrument console and the one is the infotainment touch screen. Infotainment is a touch unit and yes, the UI is very simple, बहुत crisp है. Speaking of the driver display, हर information from the fuel economy to the speed and where you should be upshifting, वो सब बहुत crisp manner में आपको यहाँ दिखते हैं. I think if you are new to the Seltos, आप first time इसे drive कर रहे हैं, this is going to be super easy to use. For example, जो audio controls हैं and the AC controls, उनको revise कर दिया गया है. A new feature also segment first from Kia is dual zone climate control on it. नए Seltos के cabin में आपको wireless charging मिलती है for your phone, जिसको आप यहाँ place कर सकते हैं. I think this could have been designed मच मोर एफिशिएंटली. थोड़ा सा अंदर जाके है तो एंड आप एंड्रॉयड ऑटो को यूज़ कर सकते हैं, एप्पल कार प्ले को.
which is wired. This is not a wireless version. I think this could have been wireless. Nevertheless, दोनों फ्रंट सीट्स पे you get ventilated function. That means कि गर्मी में आपको कंफर्टेबल एहसास होने वाला है. However, यूटिलिटी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. पानी की बॉटल को आप इजीली डो पैड पे भी प्लेस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बीच वाले कभी होल्स में भी प्लेस कर सकते हैं ऑन द मूव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन यू मिस आउट द न्यू जाइगेंटिक पैनोरामिक सनरूफ. It makes the cabin super airy and very comfortable, but due to 50 mm of increase in length, क्या rear space बढ़ा है? Let's get at the back. तो Seltos का rear seat experience कैसा है? I will give you an idea. I am 6 feet tall and आप देख सकते हैं पैनारोमिक सनरूफ होने के बावजूद भी there is no compromise in head space. लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है. मैंने ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ है. Still I can move my legs pretty easily and decent space to move my arms around अगर दो लोग पीछे ट्रैवल कर रहे हैं. There are some new additions in features as well. For example, अब आपको 2 Type-C ports मिलते हैं and you also have a space जहां आप अपने फ़ोन को प्लेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग. रियर AC वेंट्स पहले सेल्टॉस में आते थे, अभी भी इसमें कंटिन्यूड है, एंड द एयर प्योरीफायर एज वेल. कुछ स्मार्ट एडिशंस हुए हैं. फॉर एग्जांपल, आपको लेदर सीट्स के साथ तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे पैसेंजर्स के लिए. 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, एंड ऑल्सो आइसोफिक्स आपको रियर बेंच पे मिलता है. एंड अगर आप शॉफर ड्रिवन होना पसंद करते हैं तो आपको कुछ एडिशंस, फॉर एग्जांपल दिस बिगर आर्म रेस्ट जहां पर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, रीडिंग लैम्प्स एंड द सन ब्लाइंड्स, ये आपको यहाँ मिलने वाले हैं. आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट पैकेज अगर आप शॉफर ड्रिवन मिड साइज एसयूवी चाहते हैं. Now, before going ahead and sharing the driving experience of the new Seltos with you, मैं आपसे प्राइस शेयर करना चाहूँगा ऑफ दिस कार. अगर आप टेकलाइन लेते हैं एंड IMT वेरिएंट जो हम लोग चला रहे हैं वो ऑप्ट करते हैं, दैट विल कोस्ट यू 18,29,000 एक्स शोरूम. लेकिन अगर आप इसी पावर ट्रेन में, विच इज़ द 1.5 लीटर न्यू टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, उसमें DCT ऑप्शन लेते हैं फुली ऑटोमेटिक, वो आपको 19.19 लाख एक्स शोरूम कोस्ट करेगा. However, इसमें आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है, विच इज द ओल्डर किया सेल्टॉस वाला इंजन, द सेम 1.5 लीटर इंजन विद द टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. बट अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन चाहते हैं पेट्रोल और आप IVT गियर बॉक्स चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो वो आपको सिर्फ STX वेरिएंट तक मिलेगा. दिस इज द STX प्लस विच वी आर ड्राइविंग. नाउ स्पीकिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यू सेल्टोस, इट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस. इफ यू रिमेंबर करेक्टली 2019 में किया ने सेल्टोस को इंडिया में लॉन्च किया था, एंड एट दैट टाइम इट वाज वेरी वेल नोन फॉर इट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन. अराउंड द कर्व्स एंड कॉर्नर्स गाड़ी को चलाना बहुत फन टू ड्राइव फील देता था. बट विद द न्यू सेल्टोस किया ने सस्पेंशन का ट्यून अप जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ कर दिया है. सो द फ्रंट सस्पेंशन हैज बीन डैम्ड मोर, तो वहां पर आपको स्टिफनेस इंक्रीज मिलेगी, एंड रियर सस्पेंशन पे आपको जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, सो दैट द पैसेंजर्स दे रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ कंफर्ट जोन. अगर मैं सस्पेंशन का बिहेवियर आपसे शेयर करूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाइंट राइड आपको मिलेगी. बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस पर ही आप अपने आप को अनसेटलिंग फील करेंगे, एल्स आप गाड़ी में मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल रहते हैं. हाउएवर सॉफ्टर सस्पेंशन मीन्स कि जब गाड़ी हाई स्पीड यानी ट्रिपल डिजिट स्पीड पे आप ट्रेवल कर रहे हैं ऑन द हाईवेज, थोड़ा सा आपको अंडुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा फील होंगी इन कंपैरिजन टू द ओल्डर सेल्टोस. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टीयरिंग का फीडबैक जो है अब वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. प्रीवियस सेल्टोस का स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट फील होता था, बट द न्यूअर वन इट्स अ बिट मोर हैवियर. लो स्पीड्स पे कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा टू ड्राइव इट. अगर मैं इसे कंपेयर करूं विद द ग्रैंड विटारा और द हाई राइडर, तो इसका स्टीयरिंग का फीडबैक एट द लोअर स्पीड्स इज स्टिल सॉफ्टर, स्टिल लाइटर. हाउएवर जब आप हाई स्पीड ड्राइविंग करेंगे तो आपको शायद वैसा फीडबैक नहीं मिलेगा जैसा आपको फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक में मिलता है. बट ओवरऑल एक बहुत ही सीडेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ड्राइवर सीट से मिलने वाला है.
पैसेंजर्स की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द राइड रहेंगे, बट ऑल्सो जो सीट्स की कुशनिंग है, हाउ दे हैव बीन डिजाइन, बोल्स्टरिंग कैसी है, उसकी वजह से भी स्पेशली द फ्रंट पैसेंजर्स वो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे. आई हैव ऑलरेडी डन 140 प्लस किलोमीटर्स एंड द कार इज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वेरी कंफर्टेबल. Now the most important thing is the new engine. पहले किया 1.4 लीटर टर्बोचार्ज एक इंजन ऑप्शन देती थी, जो कि थोड़े दिन पहले डिसकंटिन्यू हो गया था. ऑब्वियसली नई गाड़ी आ रही थी और इसमें एक नया इंजन आना था. अब ये इंजन हमने Hyundai Verna पर भी देखा, which is the new 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन. ये पुराने इंजन से नियर अबाउट 18 to 20 bhp ज्यादा बनाता है. मैं स्पेसिफिकेशंस आपसे शेयर कर देता हूँ. 1.5 liter turbocharged makes 160 PS of peak power and 253 Newton meters of torque. अगर आप HTX Plus वेरिएंट ले रहे हैं जो हम आज चला रहे हैं, इसमें आपको दो ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलेंगे. वन इज द IMT 6 स्पीड जो हम लोग चला रहे हैं, एंड द अदर वन इज द 7 स्पीड DCT. IMT का एक्सपीरियंस इज वेरी डिसेंट. दिस इज अ मिक्स, ऑब्वियसली दिस इज अ मिक्स ऑफ अ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, बट क्लच ना होने के बावजूद भी जो थ्रो हैं, गियर शिफ्ट्स हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं. बहुत लंबे थ्रोज नहीं हैं. दैट मीन्स कि बार बार अगर आप गियर शिफ्ट्स कर रहे हैं सिटी में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो आप थकेंगे नहीं इजीली. एंड ऑल्सो थैंक्स टू द वेरी जनरस आर्मरेस्ट इन बिटवीन. एज यू कैन मेक आउट, मी एंड Shippranshu बोथ आर सिटिंग एंड हमारे शोल्डर्स या कुछ ऐसा आपस में टच या रब नहीं हो रही है. सो येस, एम्पल ऑफ स्पेस ओवर हियर. ऑल्सो ड्यू टू द पैनारोमिक सनरूफ, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत एयरी भी फील होता है, बिकॉज ग्लास एरिया बढ़ गया है. प्रीवियस सेल्टोस पे आपको यूवी कट ग्लास नहीं मिलता था, इसमें यूवी कट ग्लास भी दिया गया है. दैट मीन्स कि एसी की परफॉर्मेंस भी अब एनहांस हो गई है. माइंड यू द ब्रेक्स, बिकॉज चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं इफ यू ऑप्ट फॉर द टॉप स्पेक्स, चाहे आप किसी भी ट्रिम में लें. चारों डिस्क ब्रेक्स का जो फील है, फीडबैक है, दैट इज वेरी वेरी गुड. So at high speeds like triple digit speeds, you can easily control the car, easily stop the car, and the most important thing is that ये अपनी line lose नहीं करती है in case of emergency braking. STX Plus जो हम लोग चला रहे हैं, इसमें आपको ADAS फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट अगर आप और सेफ्टी ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हैं, थोड़ा सा आपको पैसा you will have to shell out more from your pocket, और आप ऑप्ट कर सकते हैं to the GT line या फिर X line, जिसमें आपको ADAS level 2 मिलता है, 17 different safety features. So all in all, a very good upgrade from the older Seltos. The driving experience is now more comfort oriented, and if you're chauffeur driven, I think Seltos IMT is going to be one of your most value for money choices. So what is my verdict of the new Seltos? Well, it is a beautiful mid-size SUV, and नए updates ने इसको बहुत modern and aggressive भी बना दिया है. देखने में, ड्राइव करने में कार इम्प्रूव हुई है, बट आई थिंक ऑन द सेफ्टी फ्रंट सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बिकॉज इट नाउ कम्स विद ADAS लेवल 2 जो आपको GT लाइन एंड X लाइन में मिलता है. 17 न्यू फीचर्स जो आपको हेल्प करेंगे ऑन द रोड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ यू एंड पैसेंजर्स इनसाइड. सो येस, अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ फैमिली मैन जो एक ऐसी गाड़ी चाहता है जो स्पेस दे, कंफर्ट दे, लॉट्स ऑफ फीचर्स दे, एक रिलायबल ब्रांड नेम भी दे. You tell us down in the comments आपको नई Seltos कैसी लगी, what you think about its pricing, and would you like to see a comparison of this and its rivals like the Volkswagen Tiguan, like the Volkswagen Tiguan and the Skoda Kushaq. I'll meet you again soon with another detailed review. Until then, please keep watching 91 Wheels and always do be a seatbelt.